students, myself, Bafna ma'am. I'll be taking a class of the contract today. Now let us know what do you mean by contract and uh, what is the important of the and basic part of the contract is. So we will study what is contract. Contract is also known as mercantile law or a business law. Actually, contract is very important basic part of the mercantile law or a business law. In our day-to-day life, we not only enter into a contract but also perform them. For example, when we purchase a household goods, stationery items, we enter into a contract. Travel by auto rickshaw, bus, railway station, etc. We enter into a contract with a cab driver, a bus transporter company, or a railways, respectively. Similarly, when we go to a film theater, when we give a loan to a friend, we book a flat with a builder or promoter. Even when we purchase a milk from the milkman, we enter into a contract. We do enter into a different contract, the aforesaid cases with the person concerned. Many a times we enter into a number of contracts without even knowing their nature from the point of view of law. All such contracts entail legal rights and obligations. ये सब जो contracts हम day to day daily life में हम जो करते हैं, they entail legal rights and obligations. हमको वो लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस महसूस होता है कॉन्ट्रैक्ट में. मोर ओवर ऑल सच बिजनेस ट्रांजैक्शन आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट. जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है वो सब कॉन्ट्रैक्ट ही होता है. एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दस द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स टू ब्रिंग अबाउट एन एलिमेंट ऑफ डेफिनिटिज्म. ना अभी ये देखते हैं व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and the definition of the contract. The meaning of the contract is yes, section 2 and subsection B, the Indian Contract Act 1872 defines an agreement enforceable by law is a contract. See, an agreement enforceable by law is a contract. According to William Anson, he tells a contract is a legally binding agreement between two or more persons by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the part of the other or others promised, according to William Anson. Now we will just find out what is a contract with a detailed definition, what it has been given. A contract must have following two elements: an agreement, enforceability of an agreement. In form of an equation, we can give like that: contract is equal to an agreement plus enforceability by law. Now we will see what is an agreement. We'll just see what is an agreement. An agreement defines every promise, every set of promise, every set of promise forming the consideration for each other. According to section 2E, you have to mention the section 2E. Wherever you write in the exam, you have to write the section and you have to write detailing what is agreement defined as. An agreement is defined every promise and every set of promises forming the consideration for each other. No, agreement क्या है? एक agreement क्या है? When there is a offer plus acceptance, it is a promise. जब कोई ऑफर करता है, आप उसको एक्सेप्टेंस देते हैं, तो वो अग्रीमेंट हो जाता है. और अग्रीमेंट फॉर्म कैसे होता है? उसमें आप प्रॉमिस, सामने वाला बंदा प्रॉमिस करता है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर is called agreement. Now what is promise? Let us see what is promise. A proposal when accepted becomes a promise. जैसे मैंने एक प्रपोजल दिया और आप उसको एक्सेप्टेंस देते हैं,
तो इट बिकम्स ए प्रॉमिस। दस एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो एग्रीमेंट क्या होता है, किसका एक्सेप्टेंस हुआ है, इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। एक प्रपोजल दिया है, उसका एक्सेप्टेंस दिया है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। एग्रीमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ एन ऑफर। उसमें क्या कंसिस्ट होता है, एन ऑफर और प्रपोजल। या तो ऑफर होता है या प्रपोजल बाय वन पार्टी, एक बंदे ने ऑफर दिया, एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी उसका एक्सेप्टेंस देता है, तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। बाद में एक प्रॉमिस भी बन जाता है। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रपोजल दिया आपको, आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया, तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। तो वो प्रॉमिस क्या हो जाता है, हम दोनों के बीच में एग्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ सामने वाले को कि भाई मुझे मेरा कंप्यूटर सेल करना है, आई वॉन्ट टू सेल माई कंप्यूटर टू यू फॉर 40,000। तो सामने वाले बंदे ने उस प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया और उसने कहा यस आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विल टेक द कंप्यूटर फॉर 40,000। तो ये दोनों में अग्री हुआ। तो ये अग्री हुआ, सामने वाला दूसरे दिन आता है, तो आई हैव गिवन ए प्रॉमिस दैट आई विल बी सेलिंग माई कंप्यूटर टू यू ओनली, सो देर वॉज एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर साइड, सो दिस हैज बिकम एन एग्रीमेंट। वो प्रॉमिस एक एग्रीमेंट बन गया है। सो देर इज ए नीट क्लीन क्लियरिटी ऑफ एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट में क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि भाई प्रॉमिस होता है उसमें कि भाई जो कुछ आप चीज दोगे, इट हैज बिकम एन प्रॉमिस कि भाई सामने वाले जिसने एक्सेप्टेंस दिया है उसी को दोगे आप। सो इट इज ए प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। तो प्रॉमिस सामने वाला प्रॉमिसी बन जाता है। तो अभी यहाँ पे एक है वाइडर टर्म है कि सोशल जो एग्रीमेंट होता है वो इट शुड बी ए लीगल रिलेशनशिप। इट हैज अ वाइडर टर्म। अभी एग्रीमेंट इट हैज अ वाइडर टर्म, इट मे बी आइदर और सोशल और लीगल एग्रीमेंट। अभी हम देखते हैं सोशल और लीगल एग्रीमेंट क्या है। ये एग्रीमेंट है ना, एक वाइडर टर्म है। इट मे बी आइदर सोशल और लीगल एग्रीमेंट। इन केस ऑफ ए डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट पार्टीज कंसर्न डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। इट कैनॉट क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक एग्जाम्पल देती हूँ कि भाई ए इन्वाइट्स हिज फ्रेंड बी टू ए डिनर एंड बी एक्सेप्ट द सेम। अभी मैंने एक मेरे फ्रेंड को इनवाइट किया डिनर को, एंड मेरे जो सामने वाला फ्रेंड है वो एक्सेप्ट करता है। हियर इट इज ए सोशल एग्रीमेंट। मेरा और मेरे फ्रेंड का सोशल एग्रीमेंट था। हेंस अगर मेरा फ्रेंड फेल हो जाता है डिनर पे आने के लिए, तो आई कैन नॉट फाइल ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द रिलीफ कि भाई बी ने मुझे प्रॉमिस किया था और बाद में वो नहीं आया। मैंने इनविटेशन दिया डिनर के लिए, तो अभी वो नहीं आया। नो, आई कैन नॉट फाइल ए सूट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सो इट इज बीन सेड दैट ए सोशल एग्रीमेंट, जो सामाजिक एग्रीमेंट है, डू नॉट गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस नहीं हो सकता, and it is not enforceable in the court of law. It is only those agreements which are enforceable in the court of law, which are considered to be a contract. कौन सा enforceable हो सकता है, कौन सा agreement enforceable हो सकता है, which are enforceable in the court of law, which are considered to be a contract, यानी उसमें consideration होना चाहिए। consideration अभी ये अभी आगे हम लोग देखेंगे कि भाई उसमें क्या essential elements है, कौन enforce कर सकता है कोर्ट में। तो हम आगे देखते हैं कि भाई क्या है करके।
नो अब पहले एक बार नेचर द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है देख लेते हैं। नो सी द ऑब्जेक्ट, जो कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो उसका राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होता है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू सी दैट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट आर रेस्पेक्टेड। जब आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो, इट इज टू बी सीन दैट योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस वॉट एवर इट इज क्रिएटेड आर रेस्पेक्टेड। The expectation of the contracted parties created by the promises are fulfilled। यानी आपका प्रॉमिस जिसमें आपने या तो ऑफर दिया है या एक्सेप्टेंस दिया है, ये देखना है कि आपके प्रॉमिसेस फुलफिल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर फुलफिल नहीं हुआ है, द पर्सन हु इज सफरिंग द लॉस, यानी जिस बंदे का लॉस हुआ है, ही कैन गो टू द कोर्ट एंड ही कैन क्लेम द लीगल रेमेडीज that are available for the aggrieved party। कौन aggrieved party है? जिसका लॉस हुआ है। अगर आपका लॉस हुआ है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं एंड यू कैन क्लेम ए लीगल रेमेडी। अभी विलियम एंसन वो क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज टू एंश्योर वॉट ए मैन हैज बीन प्रॉमिस शैल बी परफॉर्म्ड। अगर एक इंसान ने क्या प्रॉमिस किया है वो उसको परफॉर्म करना चाहिए। एंड वॉट अ मैन हैज लेड टू एक्सपेक्ट, एक इंसान ने क्या एक्सपेक्ट किया है वो दैट शुड बी फुलफिल्ड। अभी लॉस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या कंपेल करता है? ये क्या कंपेल करता है? बोथ द कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डू बोथ द पार्टीज, अभी ए और बी, ए ने कहा मेरा कंप्यूटर में बेच रहा हूँ आपको 40,000 में, और बी बोलता है मैं आपको है ना पैसे में कल लाके दे दूंगा करके। सो बोथ द पार्टीज अभी कॉन्ट्रैक्ट में है, बोथ द पार्टीज हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने ए को है ना कंप्यूटर देना चाहिए एंड बी ने उसको 40,000 देना चाहिए। सो देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड देर इज अ प्रॉमिस ऑल्सो। So we will see next the nature of the contract। अभी nature of the contract में क्या है? nature of the contract में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते एक कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज को कि भाई कोई कोर्ट आके आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाएगा। आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो you can lay any number of rights and duties। Contract does not lay down any number of rights and duties। Contract में नहीं लिखा है कि क्या rights and क्या duties सामने वालों को बोलना है। Number of rights and duties, number of laws you can make, उसमें rights and duties नहीं लिखा हुआ रहता है। When you are entering into a contract, rights and duties किताब में नहीं लिखा हुआ है। आप अपना कुछ राइट ड्यूटीज या अपना लॉ कुछ बोल सकते हैं सामने वाले को। इट ओनली कंसिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, व्हाट डज इट कंसिस्ट? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स विद इन द लिमिट्स ऑफ विच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव टू एंटर इनटू एग्रीमेंट बाय देयर ओन विश। बाय देयर ओन विश दे हैव टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। ना अभी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस एग्रीमेंट विल बी स्टिपुलेटेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ। आप अपने को ही खुद को जब आप अपने एग्रीमेंट करते हैं तो आपका टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ही होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं कहा है कि आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस कर सकते हैं या ये राइट्स बोल सकते हैं या ये ड्यूटीज है। नहीं, आप अपना खुद राइट्स एंड ड्यूटीज आपका खुद का होगा। आपका टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद कर सकते हैं। any number of rights and duties, any number of terms and conditions आप अपना agreement में कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल्स है। इट ले डाउन ओनली प्रिंसिपल्स है। इन दिस रेस्पेक्ट इट डिफर्स फ्रॉम अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ। ये अदर ब्रांचेस ऑफ लॉ इसलिए डिफरेंट है कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये क्या होता है? जनरल प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 to 75 जनरल प्रिंसिपल्स है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड सेकेंड डील्स विद सम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी होता है, नेमली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। सो हम लोग ये आगे डिस्कस करेंगे कि क्या है क्या नहीं है करके।
तो अब ये मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है? द राइट शुड बी रेस्पेक्टेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ द पार्टीज आर प्रोमिसेस आर शुड बी फुलफिल्ड। अगर प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है तो लीगल रेमेडीज भी अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट भी हो गया, नेचर भी हो गया, मीनिंग भी हो गया, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, व्हाट इज प्रॉमिस। सो वी विल सी next what are the essential element of a contract. Now what are the essential elements of a contract? एक बात है कि social agreement does not give rise to contractual obligations. जो सोशल एग्रीमेंट्स रहता है, मैंने जो एक डिनर का एग्जांपल दिया था कि भाई मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि भाई आप डिनर आओ, तो दैट विल नॉट गिव राइज टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस एंड इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. Only those agreement, मैंने बोला only those agreement are enforceable in the court of law which are considered to be a contract. Now what are the essential elements of the contract? के essential elements contract में क्या क्या है, तो किसको contract कहेंगे, किसको agreement कहेंगे. So which agreement are enforceable in the court of law and which are not enforceable in the court of law. First है all contracts are agreement but all agreements are not contract. Please see to it, these questions will arise in the exam. So आपको ये देखना है all contracts are agreement but all agreements are not contract. सब कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट बन जाते हैं लेकिन सब अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते. क्या कारण है उसका? मैंने आप पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया है. एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, पहले ही बोला एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो कोर्ट में जाके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस कि भाई हाँ ये सचमुच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको दोस एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट. अभी every agreement will have to fulfill certain conditions given in section 10 of the Indian Contract Act. section 10 में क्या है, तो every agreement have to fulfill certain conditions रहता है, तो वो fulfill करने से it becomes an agreement. According to section 10, all agreements are contract if they are made by free consent of the parties. If they are made by the free consent, जब अग्रीमेंट फ्री कंसेंट में होता है, यानी दबाव नहीं है, दबाव नहीं है किसी का. इफ इट इज मेड बाय अ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन with a lawful object and are not expressly declared to be void. सेक्शन 10 क्या बोलता है, फिर से मैं बोलती हूँ. All agreements are contract if they are made by free consent of the parties competent to contract. If they are competent to contract for a lawful consideration, lawful object, and are not expressly declared void, or an agreement is required to be made by writing or in presence or witnesses. See, free consent of the parties competent to contract a lawful consideration with a lawful object and are expressly declared to be and are not expressly declared to be void. सो एक कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए जब आप अग्रीमेंट बनाते हो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए. तो सामने वाला बंदा फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, यानी दोनों में फ्री कंसेंट होना चाहिए. कंसेंट कैसे होना चाहिए, यानी राजीनामा कैसे होना चाहिए, फ्री से. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? माइनर के नॉट बिकम ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. देयर पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट, यानी मेजर होना चाहिए. फॉर ए लॉफुल कंसिडरेशन, यानी लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कंसिडरेशन तो कैसे है, मनी का लेन देन, यानी पैसे का या कुछ व्यवहार करते हैं दूसरे चीजों का, तो वो लॉफुल होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इलीगल, इट शुड बी ए लॉफुल विथ ए लॉफुल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए कि भाई ये काम मुझे होना चाहिए, वो भी कानूनी. एंड आर नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. जो भी कोई काम है, जो भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है या अग्रीमेंट है, तो वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए. एंड आप अग्रीमेंट करते हो तो इट इज रिक्वायर्ड इफ इट इज मेड इन राइटिंग और इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस. विटनेस के सामने राइटिंग में लिखा है तो बहुत अच्छा है. एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड
if it is required by any law. It should be registered. रजिस्टर होने से तो वो थोड़ा और अच्छा बन जाएगा. It will become a valid contract. Now what are the essential of a contract? We'll see next what are the essential of a valid contract. The essentials of a valid contract are there should be at least two or more parties. At least दो इंसान तो होना चाहिए valid contract होने के लिए. The person who makes the proposal is called promisor. The person यानी मैंने प्रपोजल दिया तो मैं बन गई प्रोमिसर. एंड द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, मैंने प्रपोजल आपको दिया तो सामने वाला क्या हो गया? प्रोमिसी. ही बिकम्स ए प्रोमिसी. आई एम ए प्रोमिसर. मैंने आपको प्रपोजल दिया कि भाई मुझे कंप्यूटर बेचना है तो आई एम ए प्रपोजर. मैंने प्रपोजल दिया तो आई एम ए प्रोमिसर. और आपने प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दिया तो आप बन गए प्रोमिसी. सो एटलीस्ट टू पार्टीज होना चाहिए, टू और मोर पार्टीज. सेकेंड इज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. देर मस्ट बी ए लॉफुल प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस बाय अनदर पार्टी. यानी मैंने आपको प्रपोजल दिया तो दैट शुड बी अ लॉफुल. मैं एक पार्टी बन गई और सामने वाला ने एक्सेप्टेंस दिया अदर पार्टी ने तो इट बिकम्स एन एक्सेप्टेंस. दिस बिकम्स एन वैलिड एग्रीमेंट. द अभी टर्म्स एंड कंडीशंस प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए. इट मस्ट बी डेफिनेट. द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. अभी मैंने प्रपोजल दिया तो सामने वाला एक्सेप्टेंस देगा तो द प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल. पूरा का पूरा होना चाहिए. प्रपोजल जब इंसान देता है और आप उसको एक्सेप्टेंस देते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल होना चाहिए. तो अभी एब्सोल्यूट क्या है, अनकंडीशनल क्या है, विल डिस्कस स्टिल मोर इन फर्दर. It must be properly communicated to the proposee or promisee. Promisee यानी मैं promiser हूँ, सामने वाला promisee है. The proposal when accepted becomes a promise or an agreement. अगर मेरा proposal किसी सामने वाला ने acceptance दिया तो agree किया है तो it becomes an agreement. तो फर्स्ट क्या पॉइंट था? There for an agreement or a contract there must be two parties. There must be proposal and acceptance. And third part क्या है? There should be an intention to create a legal relationship. जो भी कोई relationship मेरे contract में होगा that should be legal. It should create a legal relationship. Create होना चाहिए legal relationship. अपना relationship social नहीं होना चाहिए. There should be intention to create a legal relationship. अभी मेरा रिलेशन आपका और मेरा क्या होगा? when there is offer and acceptance it becomes a legal relationship. When two parties enter into an agreement their intention must be to create a legal relation between them. However, if there is no such intention, or if there is an intention to only create a social or domestic relationship, then there exists no contract. अगर मेरा और आपका रिलेशन सिर्फ सोशल और डोमेस्टिक रिलेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाया जाएगा. ये समझ में आया? तो इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ना कि सोशल और डोमेस्टिक. तो फोर्थ पॉइंट है फ्री कंसेंट. तो फ्री कंसेंट क्या है अपन देखते हैं. फ्री कंसेंट में there must be free consent of the parties to an agreement. यानी there must be consens ad idem. Which means both the parties must agree on the same thing in the same sense. यानी जो कोई बोल रहा है, अगर मैंने बोला है कि मैं कंप्यूटर बेच रहा हूँ आपको तो वो कंप्यूटर सामने वाला मुझे, मैं जो प्रपोजल दे रहा हूँ सिर्फ कंप्यूटर का ही दे रहा हूँ, ना कि मैंने ये बोला है कि मैंने ये नहीं बोला कि मैं अपना लैपटॉप दे रही हूँ करके. कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों अलग है. उसको सामने वालों को समझना चाहिए कि प्रपोजल कंप्यूटर का है. तो देयर शुड बी कॉन्सेंस ad idem which means both the parties must agree on the same thing in the same sense.
अभी उसको लगेगा कि भाई सामने वाला कंप्यूटर बोल रहा है तो शायद वो लैपटॉप होगा, नहीं। तो कंसेंट यानी सेम कॉन्सेंस ad idem should be same sense. The consent can be said to be free only when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistakes. अभी कंसेंट कैसा होना चाहिए? कोई उसमें कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी किसी का डर दबाव यानी फ्रॉडुलेंट वे से कोई माल बेचने का, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने बोला मैं कंप्यूटर बेच रही हूँ ना कि लैपटॉप, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, समझने सोचने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए फ्री कंसेंट। कोई दूसरा आके इन्फ्लुएंस करता है, अरे ले लो बहुत अच्छा है, सस्ते में मिल रहा है। नो, अगर ये दबाव है तो देयर विल बी ए नो कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट आप एंटर कर रहे हो तो ये देखना है कि भाई दोनों मीटिंग ऑफ द माइंड्स आर सेम, दोनों का जो सोच विचार है वो सेम है। अगर सामने वाला सोचता है दूसरा और जो प्रपोजल देता है वो दूसरा, तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि मैं कंप्यूटर बेच रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है कि वो भाई लैपटॉप बेच रहे हैं, तो देयर इज अ मिस्टेक, देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन, सो देयर कैन नॉट बी ए कॉन्ट्रैक्ट। द माइंड शुड बी फ्री। समझा है फोर्थ पॉइंट? तो अभी फिफ्थ पॉइंट के ऊपर देखते हैं। कॉम्पिटेंट पार्टीज, देयर मस्ट बी ए कॉम्पिटेंट पार्टीज। जो कॉम्पिटेंट पार्टीज है वो साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ मेजॉरिटी होना चाहिए, एंड डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कि भाई किधर से तो एलियन एनिमीज का है या फॉरेन सॉवरेन है, क्रिमिनल है। तो देयर शुड बी ए कॉम्पिटेंट पार्टीज, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो। तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है जो माइनॉरिटी, उसके साथ आप बिजनेस का व्यवहार तो नहीं करेंगे। जो अनसाउंड माइंड है, जो पागल है, उसके साथ तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो ये मालूम भी नहीं होता है कभी कभार। तो एंड डिसक्वालिफाइड जो क्रिमिनल्स है, एलियन एनिमी से, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो इट इज नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सिक्स्थ पॉइंट है देयर शुड बी ए लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अभी लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? The object of an agreement must be lawful. It should not be contrary to a provision of the law. जो agreement आप कर रहे हो, it should be lawful. एक lawful provision में जो law है उसके हिसाब से होना चाहिए। अभी उसके हिसाब से opposite आप agreement करोगे, जैसे illegal agreement है, immoral agreement है, public policy के against है, oppose किया हुआ है, तो उसके हिसाब से आप अग्रीमेंट करोगे तो वो अग्रीमेंट नहीं कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक इंसान, एक जो मालिक था, उसने हाउस है ना अपने घर को भाड़े के ऊपर दिया 500 रुपीज़ पर मंथ। पर भाड़े के ऊपर किसको दिया? जो प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा था उसको भाड़े के ऊपर दिया। अभी तो ऑब्जेक्ट ऑफ द अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। ये अनलॉफुल अग्रीमेंट है, तो अभी वो जाके ये बोल नहीं सकता कोर्ट में कि भाई ये मुझे भाड़ा नहीं दे रहे, तो इट इज अ अनलॉफुल, इट इज अ इलीगल, हेंस इट कैन नॉट बी एनफोर्सिएबल। समझा? तो अभी सेवेंथ पॉइंट क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। अभी लॉफुल कंसिडरेशन क्या है? लॉफुल तो ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट, उसका मोटो लॉफुल होना चाहिए। अभी नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट है लॉफुल कंसिडरेशन। अभी ये कंसिडरेशन का क्या मतलब है? कंसिडरेशन इज सिंपल लैंग्वेज में समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यानी कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए। The agreement is legally enforceable when one party gets something and the other something in return. कुछ something in return में मिलना चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन का क्या मतलब है? जब आप अग्रीमेंट में जाते हो, एक इंसान को कुछ, अभी मैं एक एग्रीमेंट में जा रही हूँ कि भाई मुझे अपना कंप्यूटर बेचना है, तो सामने वाला मुझे पैसा देगा और मैं उस सामने वालों को कंप्यूटर दूंगी। समथिंग इन रिटर्न, बोथ आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। सो फर्स्ट पॉइंट ये है द intention of the parties to create a legal relationship can be ascertained by the presence or absence of consideration. अभी intention of parties to create a legal relation कभी ascertain हो सकता है? जब
आपको कंसिडरेशन मिलता है उससे मालूम पड़ता है कि भाई उसका इंटेंशन क्या है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो क्रिएट हुआ है तो कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है उसको। इट मे बी थ्रू एक्ट और एब्स्टिनेंस, यानी कुछ एक्ट और एब्स्टिनेंस, और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी या तो वो चीज कीजिए, या एब्स्टिनेंस फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी आप ये काम नहीं करेंगे। और प्रॉमिस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, यानी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, एग्रीमेंट कर रही हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। तो लॉफुल कंसिडरेशन उसमें भी ये भी एक है एलिमेंट है। इट नीड नॉट बी इन कैश और काइंड, ये जरूरी नहीं है कि कैश ही मिलना चाहिए हर चीज में। अभी मुझे कैश मिल रहा है तो सामने वालों को क्या मिलता है, कंप्यूटर मिलता है। फर्दर इट मे बी रिलेट टू एनी फॉलोइंग पीरियड्स, में पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। बट इट मस्ट बी इन रियल, डेफिनेट यानी क्लियर, लॉफुल एंड सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ, यानी कुछ वैल्यू होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन आप जब जाते हो कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब इट शुड बी सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। अभी ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आप डिस्कस करते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कहता है, एसेंशियल एलिमेंट्स का 8 पॉइंट है सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अभी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी यही ऑफ परफॉर्मेंस यही कहता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो, देयर शुड बी पॉसिबिलिटी कि भाई आप उस कॉन्ट्रैक्ट को आप परफॉर्म कर सके, समझा। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। अभी ये कौन सा एग्रीमेंट है जो इम्पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि भाई एक साधु प्रॉमिस करता है एक इंसान को कि भाई मैं आपको है ना जिंदा हेवन में लेके जाऊंगा अगर आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो। अभी ये एग्री करता है तो उस साधु को जाके 1 लाख रुपए देता है, और वो सोचता है कि भाई साधु मुझे है ना he will take me to heaven alive। तो ये हो सकता है क्या? Is this a possibility to perform this contract? No, it cannot. There is no possibility of performance. There should be a possibility of performance. If there is no possibility of performance, it does not create any legal duty and it is not enforceable by law, because this promise is impossible to perform। ये possible हो ही नहीं सकता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर करते हो, इट मस्ट बी सर्टन यानी क्लियर, वेग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, एंड इनकेपेबल ऑफ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन। It must be certain and not vague or indefinite and incapable of meaningful interpretation। इंटरप्रिटेशन भी उसका नीट क्लियर होना चाहिए, समझा। अभी एक एग्जांपल देती हूँ। A sells 100 tons of oil to B। The agreement will be void for uncertainty as regard what kind of oil is required। अभी A agrees to sell B 100 tons of oil। ये अग्री करता है, मैंने अग्री किया कि भाई आपको 100 टन्स ऑफ ऑयल आपको बेचूंगी, लेकिन ये अग्रीमेंट क्वेश्चनेबल है, वॉइड क्यों है, अनसर्टेनिटी क्यों है। अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि कौन सा तेल चाहिए मुझे, मैं कौन सा तेल बेच रही हूँ करके, बी वाले ने पूछा ही नहीं। तो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ये भी होनी चाहिए कि मैं परफॉर्मेंस करूँ, लेकिन कौन सा तेल मुझे बेचना है और सामने वाले ने कौन सा तेल मांगा है। सो देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्रीमेंट। So certainty and possibility of performance should be there। certainty यानी नीट क्लीन क्लियरिटी होनी चाहिए और possibility of performance भी होना चाहिए। So 9th point is agreement not declared void। जब आप agreement करते हो या contract में जाते हो, the agreement must not have been expressly declared void by any law in force in the country। तो वो वॉइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्रीमेंट कर लेते हैं
वेजरिंग अग्रीमेंट, अग्रीमेंट इंटरेस्टेड इन ट्रेड, जहाँ पे एनिमी कंट्री रहती है तो वहाँ पे जाके कुछ माल ऐसे बेचते हैं, तो जहाँ पे रेस्ट्रेन किया हुआ रहता है ट्रेडिंग करते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट करते हैं, अग्रीमेंट इंटरेस्टेड ऑफ मैरिज, ये सब थोड़े कुछ अलग डिफरेंट एग्रीमेंट्स है. These agreements should not be declared void. So these are the 9 points which are essential elements of the contract. Now we'll see, when we have completed with these essential elements, we have completed with these 9 points of essential elements. Now we will see, अभी ये एसेंशियल एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है तो लीगल फॉर्मेलिटीज उसकी होनी चाहिए. अगर आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स आपकी क्लियरिटी हो गया है तो अभी आप कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो एक लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट मे बी आइदर और इन ओरल और इन राइटिंग. अभी आपको अग्रीमेंट में जाना ही है तो ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो इट्स बेटर अग्रीमेंट आप कर रहे हो तो या तो लिखित में होना चाहिए या फिर ओरल भी हो तो चलेगा. इट्स बेटर इफ इट इज इन राइटिंग. इट इज रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ टू हैव एन एग्रीमेंट इन राइटिंग. लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है कि अच्छा है कि आप एक पेपर पे लिखे और पेपर स्टैम्प होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टेशन होना चाहिए, because such formalities must be complied to make such agreement enforceable by law. एक अच्छा है कि आप एक पेपर ले, उसमें आप कुछ लिखे और if it is in writing then it is must, if it is writing then it's very good. और उस राइटिंग के साथ स्टैंपिंग होना चाहिए, अटेस्टेशन होना चाहिए. अच्छा, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है दे नीड इन राइटिंग एंड दे शुड बी अटेस्टेड, सच एज ए प्रॉमिस टू पे ए टाइम बार डेट, एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट. आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट यानी जब आप कॉन्ट्रैक्ट जाते हो, यानी बाय चांस फ्यूचर में कुछ डिस्प्यूट अराइज हो जाए तो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं कि आपका डिस्प्यूट वो सॉल्व कर ले. तो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में इट्स बेटर इफ इट इज इन राइटिंग एंड उसको रजिस्टर करके अटेस्टेशन करना चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपको मालूम है कि वो लिखा हुआ रहता है तो इट्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए उसका. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग. अभी आपको मालूम है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो लैंड आप ले रहे हैं, जो प्लॉट आप ले रहे हैं, जो फ्लैट्स में आप रह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि वो डॉक्यूमेंट नीट क्लीन क्लियर हो. एंड विदाउट दोज डॉक्यूमेंट्स, जो स्टैम्प नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो these documents will not be considered as a document. एक एविडेंस है आपको, वो एक लॉ की तरफ है, एक एविडेंस है. वो डॉक्यूमेंट्स एक एविडेंस है कि भाई जो प्लॉट है, जो फ्लैट है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपके नाम के ऊपर ही है. Nobody can come and tell that this property belongs to me. It's better if it is duly stamped. So ये essential elements आपका complete हुआ. So we have seen what is the nature of the contract, what is the object of the contract, what is the meaning of the contract, agreement, promise, and essential elements of the contract. So we will conclude this, and next part we will take, next video I will take about what are the kinds and classification of the contract, and mode क्या है contract का, mode of the formation क्या है contract का. So thank you. We will meet you in the next video.